Whatever we are noting down, explaining you please note down. Any question required, note down on the back of the register and ask. Don't leave it for tomorrow, because tomorrow will be some classes of other part of the subject. And it is possible that your question may help other students also, because of you. When you will ask a question, others are not asking because they are less courageous. But you are going to ask that question, so it will not only help you to understand that, but it will also help you. It will also help the others to understand it. This is my experience. Sometimes question asked by one student also helps other students. Okay? Please listen carefully, with full attention, be regular, and any doubt is there, ask without any hesitation. We have already discussed relative motion, relative rest. We have also discussed physical quantity. What is the meaning of physical quantity? We have also discussed that the numerical value of physical quantity is called by the word magnitude. All physical quantities have magnitude. But we have also discussed there are two types of physical quantities. One only requires magnitude. We call them scalar physical quantity, and other also require magnitude, also require some direction also for perfect understanding, complete understanding. If we will not know the direction, we cannot conclude it, we cannot derive any result. With direction we know the result. For that I have given the example of force. A force acting in opposite direction will have some other effect. A force acting in same direction will have some other effect. So without direction, we cannot reach to any conclusion. So those physical quantities which require magnitude and direction both for their understanding, they are known as vector quantities. Some of the examples are velocity, displacement, force, and you will come that later on you will get many other physical quantities which are vector quantities. For example, current. Current की definition आप पढ़ेंगे, then you will understand that electrical energy is the energy, it is a scalar quantity. But when you use the word current, it becomes a different word, meaning. You will understand in the chapter of current. So what is the meaning of current? Are you understanding? Have you any problem? I want to make it clear. The difference between current is different and electrical energy is different. In 10th class, you will get the formula to determine electrical energy, amount of electrical energy. In that formula, current value of current is also used. So current is a physical quantity because it can be measured. But it is scalar or vector. So that I am telling you it is a vector quantity. And you will understand in 10th class when you will discuss the chapter of current. Now I am coming to definition of distance. How will you define distance? Anybody? How will you define distance? Very simple definition. Total? As I mean right. Total length, that's only length. Total length, कैसे कोई याद नहीं है? Total length by moved by an object is known as its distance. अब जब distance कहते हैं, that means we are talking of length. How much length is moved? Are you understanding? So what is distance? Length. और total length भी कह सकते हैं. कितनी length आपने कवर की? ठीक है? आप गए, आप पूरा ये एरिया आप घूम के सर्किट में वापस आ गए, तो आप कितना मूव करेंगे? टोटल लेंथ जो होगी वो आपकी क्या रहेगी? डिस्टेंस के रहेगी. ऑलराइट. उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था मैं दोबारा डिफाइन करूंगा. एक डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट इज सिंपल व्हेन डिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड विद डायरेक्शन. व्हेन डिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड विद simple definition. So that physical quantity which indicates total length, also direction. उसको हम distance नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? Displacement बोलते हैं. खाली distance expressed with direction, तो displacement.
क्लियर हो गई बात? डिस्टेंस एक्सप्रेस विद डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बता दिया था कि फॉर एग्जाम्पल राइस, प्लेन राइस बोलते हैं खाली चावल, उसमें आपने अगर मटर मिला दिया तो अब उसको प्लेन राइस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे आप? या तो बिरयानी बोलेंगे या पुलाव बोलेंगे। अंडरस्टैंडिंग? अगर कोई चीज मिक्स हो जाती है तो उसका नाम भी बदल जाता है। क्लियर हो गई आपको? इसी तरह डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया। तो आई एम कमिंग स्केलर वेक्टर हम बता चुके हैं। एक गाड़ियों में आपने देखा होगा, आप डिस्टेंस नोट करते हैं मिलता है फिर मीटर, घर से कितनी दूर आ गए, घर से कितने करीब है, घर कितनी दूर रह गया, है ना? उसमें उसको वो जो डिवाइस होती है, वो जो एक मैकेनिकल डिवाइस, एक मशीन है, उसको किस नाम से पुकारते हैं? ऑडोमीटर। यू आर राइट। ऑडोमीटर क्या है? दिस इज डिवाइस। तो मैं रख करूँ जो कि इसका नाम जिक्र आएगा बीच में, तो इसलिए हमें पहले से इसका मायने पता होने चाहिए। व्हाट इज ऑडोमीटर? अ डिवाइस which measure the distance to the automobile. Automobile में एक डिवाइस जो डिस्टेंस नापे, उसको क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है, अब हमारे दो तरह के मोशन है। मोशन जो हमारे लीनियर मोशन किसे कहते हैं? हाँ जी, है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, आगे हम पढ़ेंगे क्या नाम है, पैराबोलिक मोशन। अलग अलग शेप में जब कोई चीज मूव करती है उसी नाम से उसकी मोशन को भी पुकारा जाता है। इफ अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन देन दिस मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। लीनियर जो होता है वो लीनियर इक्वेशन, मैथ्स का आपने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ खींचते हैं तो इट ऑलवेज इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन जहां पे वेरिएबल होता है वो यूनिट सिंगल पावर में होता है, जैसे x+2 x+y, उसमें कोई पावर नहीं हो। उसका जब भी ग्राफ खींचेंगे इट ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है। इसी से मोशन बना है कि लीनियर मोशन इज एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उसको लीनियर मोशन कहेंगे। If it is not moving in straight line, so then depending on the shape of its path, we will call its motion with that name. जैसे आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, if an object is moving on a circular path, on a path which is circular, that is its distance remains same from a center point. So that motion is known as circular motion. It cannot be called linear motion. It is called circular motion. ठीक है? अब एक और चीज पे हम आ रहे हैं, स्पीड पे आ जाएंगे, स्पीड की डेफिनेशन पे। मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन की दो तरह की वो आ गई, क्या? यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म का अपोजिट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल, यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? बाकी आप बताइए। हाँ, डेफिनेशन सही है। देखिए वर्ड यूनिफॉर्म समझिए, आप स्कूल में जाते हैं तो ऐसे ही कलर कपड़े पहन के जाते हैं, कोई नीला, कोई पीला, कोई लाल। आप जब स्कूल जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमें स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए। तो यूनिफॉर्म स्कूल की क्या होती है? तो सब बच्चे पहन के आते हैं एक जैसी। अगर उसमें किसी ने लाल, किसी ने नीले, किसी ने पीले कपड़े पहन रखे तो उसको यूनिफॉर्म नहीं कहते। बात समझ में आया ना? यूनिफॉर्म का मतलब ही यही हुआ कि भाई एक जैसी। तो जो उन्होंने कहा इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस in same distance in same interval of time,
इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वही इतना ही डिस्टेंस मूव करे और अगला भी डिस्टेंस उतना ही हो, टाइम भी सेम हो, ये दोनों चीजें मिलकर यूनिफॉर्म बनती हैं। एक आदमी 5 मीटर चल रहा है, फिर 5 मीटर चल रहा है, फिर 5 मीटर चल रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं है जब तक आप ये ना बताएं कितने टाइम में मूव कर रहा है। एक आदमी 5 मीटर मूव कर रहा है, क्या नाम है, 1 मिनट में, फिर वो 5 मीटर मूव करता है 5 मिनट में, फिर वो 5 मीटर मूव करता है आधे मिनट में, तो ये यूनिफॉर्म। व्हाट इज कंपल्सरी? यूनिफॉर्म इंक्लूड्स बोथ टू थिंग्स, वन मैग्नीट्यूड should be same, second time should also be same. So what is the definition of uniform motion? If an object moves equal distance in equal interval of time, दोनों इक्वल होने चाहिए, एक जैसे, वही टाइम शुरू में था, उसी डिस्टेंस और टाइम को सेकंड पार्ट में भी था, वही डिस्टेंस और टाइम थर्ड पार्ट में भी था, अगर उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें उसके मूल्य को। ये पॉइंट क्लियर हो गई बात? यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया? इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। Somebody asked what is यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड कब तक आएगी? स्पीड की डेफिनेशन में अभी नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, इसके फौरन बाद, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। समझ में आगे बात नहीं आ रही? और ये वेलोसिटी में दो चीजें इन्वॉल्व है, तो दोनों एक जैसी होनी चाहिए टाइम के साथ। पॉइंट क्लियर हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, उसका मोशन का स्पीड का मतलब समझ में आ गया। यूनिफॉर्म स्पीड इज आल्सो कॉल्ड विद द सेम डेफिनेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहते हैं? मैंने बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम सेम, या मैंने बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें एक चीज चेंज होनी चाहिए, बोथ ऑफ देम में आल्सो चेंज, नाइदर डिस्टेंस इक्वल है ना टाइम इक्वल है। अगर टाइम सेम है, डिस्टेंस क्या नाम है बदल रहा है, तभी वो नॉन यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम टेकन इज नॉट सेम, तभी वो यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस भी बदल रहा है और टाइम भी बदल रहा है, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म को समझ में आ गया? इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन, ना अनइक्वल एक कर दिया तो दूसरा सेम होना चाहिए। तो अगर आपने कहा दो, वो भी अनइक्वल वो भी अनइक्वल, तो हो सकता है वो भी यूनिफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जो है वो 10 मीटर मूव करता है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, आइडिया समझ में? फिर वही आदमी 20 मीटर मूव करता है 4 सेकंड में, फिर वही आदमी मूव करता है 30 मीटर 5 सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए टाइम भी बदल रहा है, डिस्टेंस भी बदल रहा है, लेकिन जब आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या निकल रही है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। ये कितना आ रहा है? ये भी 4 5 20। ये कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में ये भी 5 है। ये कितना आ रहा है? 1 मीटर। ये 25%। ये कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। तो देखने में डिस्टेंस भी अलग है, टाइम भी अलग है, लेकिन जब आप उसको यूनिट वैल्यू, यूनिट टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेम निकलता है, यानी स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गई? तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो है यूनिफॉर्म, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो यूनिफॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो यूनिफॉर्म हो भी सकता है और यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ये क्लियर? एंड बिगिनिंग, इफ ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रूआउट द जर्नी, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम बदल रहा है, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। But when you say is an object cover unequal distance in unequal interval of time,
तो इट मे बी यूनिफॉर्म। देखिए मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा पर सेकंड क्या डिस्टेंस आ रहा है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड की डेफिनेशन सबसे पहले हमारी, हालांकि स्पीड बार बार यूज कर रहे हैं, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? हाँ आप बताइए, जो हाथ उठा के बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। इस कॉल इज स्पीड। असल में कौन तेज है कौन फास्ट है, तो अगर आप टाइम भी अलग हो डिस्टेंस भी अलग हो तो आप नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि डिस्टेंस भी अलग था टाइम भी अलग था, लेकिन जब आपने उनकी स्पीड निकाली तो पता चला एक ही रफ्तार से मूव कर रहे हैं। तो स्पीड में हम टाइम के हिसाब से देखते हैं, यूनिट टाइम होना जरूरी है। कितना तब पता चलेगा यूनिट टाइम में, यानी उसी टाइम में दूसरा कितना मूव कर रहा है, तीसरा कितना मूव कर रहा है, चौथा कितना मूव कर रहा है, तब हम पता लगा सकते हैं कौन तेज दौड़ रहा है और कौन स्लो दौड़ रहा है। अगर टाइम बदल रहा है डिस्टेंस भी बदल रहा है तो हमें नहीं पता कौन तेज है और कौन स्लो। हो सकता है वो सेम भी हो सकता है वो सेम। तो जो डेफिनेशन दी है क्या है स्पीड की डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन, ये उसका फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आ गई? अब यार डेफिनेशन कम समझ लो टेक्निक बनाने, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारी डेफिनेशन है फॉर्मूले से बनानी आ जाएंगी अपने आप, आपको कुछ सिखाने की लर्न करने की जरूरत। जब भी फॉर्मूले की फॉर्म में कोई चीज ऐसी होती है तो उससे हम न्यूमरेटर को उस फैक्टर से मिलाते हैं, डिनोमिनेटर को 1 कर देते हैं, डिनोमिनेटर को 1, यानी यूनिट। अब ये 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 1 होना चाहिए। तो उसको हम 1 को हम यूनिट टाइम बोलते थे। यूनिट टाइम इसलिए बोल रहा है, 1 सेकेंड इसलिए नहीं कह रहा है कि मे बी 1 आवर ऑल्सो, इट मे बी 1 ईयर ऑल्सो, इट मे बी 1 मंथ ऑल्सो, 1 होना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से उसका जो यूनिट बनते हैं वो भी बदल जाते हैं कि ये 1 होना टाइम 1 होना। इससे एक एग्जाम्पल और तुमको समझ लीजिए, क्या है स्पीड की डेफिनेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है। डिस्टेंस इन यूनिट टाइम वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्पीड इंडिकेट करता है मोशन को, जब मूव करते हैं तो डिस्टेंस कवर होता है, तो डिस्टेंस चलता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तभी पता चलेगा मोशन वाली बात हो रही है, तभी पता चलेगा अपनी जगह से चल रहा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। आप खाली डिस्टेंस इन यूनिट टाइम कहेंगे तो हमें नहीं पता वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। पॉइंट समझ में आ गई है? क्या डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड इन, तो ये यूनिट है। अब डिनोमिनेटर को यूनिट करते हैं, आपने देखा होगा छोटी क्लासों में आठवीं में उसमें डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। याद है फॉर्मूला ये? दोस्तों को याद होगा, दोस्तों को नहीं याद, लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम है। अब अगर आप डेंसिटी को डिफाइन करना चाहें इस फॉर्मूले की मदद से तो आगे भी आपको हेल्प करेगा। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द मास किसका, जिसकी हम बात कर रहे हैं। डेंसिटी हमें इंडिकेट करता है हल्का भारी, कितना हल्का है कितना भारी। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके हल्के भारी की बात कर रहा हूं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट बॉडी, ऑफ यूनिट बॉडी में यूनिट वॉल्यूम, जो कि ग्राउंड में क्या आ रहा है वॉल्यूम आ रहा है। तो हमने कहा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे आपने क्या कहा, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं कहा, यहाँ हमने क्या कहा डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट। वो थोड़ा सा बदलाव आएगा कि किस हिसाब से बात कर रहे हैं। यहाँ तक मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मास मूव नहीं हो रहा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ क्या हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टाइम को इंडिकेट कर रहे तो इन यूनिट टाइम। ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब इन यूनिट वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा। इसी तरह और भी आप डेफिनेशन आगे सीखेंगे, अभी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आएगी तो उसमें भी आप देखेंगे कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डिफाइन करना आसान है। इससे भी आपका फॉर्मूला बन जाता है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बन जाता है, जब आप इससे डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या फॉर्मूला आता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आप मल्टीप्लाई कर दें
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूले बार बार उर्दू में आएंगे, ध्यान रखिए। तो डेफिनेशन स्पीड की समझ में आ गई। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। फॉर्मूले से समझना ज्यादा था। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप उसको फॉर्मूले से डिनोमिनेटर इसमें आप इसमें जनरली न्यूमरेटर को हम रिलेट करते हैं, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं उसको न्यूमरेटर से रिलेट करते हैं, और उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम डेफिनेशन में 1 कर देते हैं। अब इस केस में यूनिट टाइम निकलाएगा, इस केस में यूनिट क्या कहलाएगा? यूनिट बॉडी निकलाएगा। यू आर राइट। पॉइंट समझ में आ गया? अब आइए क्या नाम है वेलोसिटी की डेफिनेशन। वेलोसिटी की 3 डेफिनेशन है। ओके क्या? बताइए वेलोसिटी की डेफिनेशन। और भी बहुत सारी डेफिनेशन। हाँ जी नहीं देखिए वेलोसिटी आपने जो बात बोली है ना विद डायरेक्शन। वेलोसिटी में 2 वेक्टर है, एक है मैग्नीट्यूड, वो तो पता ही नहीं है आपको। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो नहीं बताया ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वेलोसिटी में 2 चीजें इंक्लूड है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन। आपने मैग्नीट्यूड वाला पार्ट नहीं बताया, आपने सिर्फ डायरेक्शन बताई। तो सबसे आसान डेफिनेशन जो है वो तो बड़ी आसान है, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या स्पीड आपने कह दिया, इसमें मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। लेकिन जब स्पीड बोलेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। अगर मैग्नीट्यूड ना होगा तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो क्या डेफिनेशन है पहली? स्पीड इन ए पर्टिकुलर टाइम आएगा, डायरेक्शन आएगा। क्योंकि स्पीड में मैग्नीट्यूड आएगा। मतलब कि वेक्टर में 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड है तो एक ही वेक्टर आएगा। तो स्पीड में मैग्नीट्यूड आ गया तो कौन सा वेक्टर है? क्या स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज कॉल्ड वेलोसिटी। आगे बात समझ मुश्किल है? अब आ जाइए फॉर्मूले के साथ। अभी बहुत सारी डेफिनेशन बन जाएंगी, खाली सही। आपको पता है कि डायरेक्शन डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन को किस नाम से बुलाते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और यहाँ पे टाइम लिख दें तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। कैसे? आप देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या था? ये स्पीड है ना। ये अब आप स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई डेफिनेशन आ गई? आपने क्या डेफिनेशन दी ओरिजिनल? स्पीड इन ए पर्टिकुलर। तो ये हिस्सा जो है ये आपका बन गया क्या? स्पीड। समझ में आ रही नहीं आ रही? और आगे का वर्ड ऐड कर दो, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। खाली स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन वो भी सही है। आपने स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और साथ में डायरेक्शन लिख दिया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में डायरेक्शन नहीं आएंगे। जबकि वेलोसिटी में 2 फैक्टर है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वाला पार्ट अंदर अलग से लिखिए। डेफिनेशन क्लियर हो गई? क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। अब थर्ड में आता है, आप जिसको स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन का तीसरा तरीका क्या है? आप पूरी साथ एक बात पूरी बात एक साथ बोल दीजिए। क्या? डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी मोशन को इंडिकेट करते तो डिस्टेंस कवर हो रहा है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। इसको इससे रिलेट कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर को यूनिट कर दिया। वही बात हो गई। डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। अब इसको अलग से हमें डायरेक्शन कहने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो आ गया उसमें। और जो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम
है ना? उसमें डिस्टेंस कवर्ड के अंदर क्या आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? दोनों फैक्टर आ गए, नहीं आ गए? तीसरी डेफिनेशन एक और इससे बनती है, डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम किस नाम से पुकारते हैं? डिस्प्लेसमेंट। किस नाम से पुकारते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और अपॉन टाइम करते हैं। भाई पूरे इतनी बड़ी बात कहने के हम शॉर्ट फॉर्म में इतनी बात की हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस इन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो हमने इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दिया पूरी बात लिखने की जगह, क्योंकि इसमें डिस्टेंस मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट है, बताइए क्या डेफिनेशन है? बताओ, डायरेक्ट न्यूमरेटर से रिलेट कर दें जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट मूव कैनॉट होगी, खाली डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम नहीं, ये क्या बताना जरूरी है? वो मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो कितनी डेफिनेशन हो गई? स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये वेलोसिटी है। डायरेक्शन मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, ये कहना जरूरी है। टाइम जब तक नहीं आएगा स्पीड नहीं बनेगी, और स्पीड जब नहीं बनेगी तो वेलोसिटी भी नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई? तो तीसरा, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट है ना, इसको यूनिट कहना जरूरी है। डेफिनेशन में किलोमीटर को यूनिट कर देते हैं, यूनिट वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे था मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी बन जाएगी। ये क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ऑफ यूनिट टाइम नहीं होता, वो गारंटी के लिए गलत हो जाएगा, इन यूनिट टाइम। अब देखिए आप स्पीड की डेफिनेशन दोबारा से क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड डी अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और इसकी जगह वहां क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दोनों में फर्क समझ में आ गया? एक में डिस्टेंस है, एक में डिस्प्लेसमेंट। और जो दूसरा फैक्टर है दोनों में से यूनिट टाइम यहां भी कर रहे हैं, और यूनिट टाइम आगे चलने की डेफिनेशन से टाइप की आएंगी, इसमें आपको डिफाइन करना आसान हो जाएगा। ये जब आप डेफिनेशन का तरीका समझ जाएंगे ना, तो फिर आप अपनी तरीके से इसको सही डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट वे हो सकते हैं तरीके, जैसे यहाँ पे तीन मैंने कई डिफरेंट वे यूज करे। मैंने कहा स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी डेफिनेशन है वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इन यूनिट टाइम, ये भी सही है ना? अच्छा, एक और चीज है, आप ये भी समझते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी वर्ड डायरेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन आप इस हिस्से में भी जोड़ सकते हैं, पूरे के साथ भी जोड़ सकते हैं। आपने कहा डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, ये भी सही है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, आगे इन ए पर्टिकुलर, तो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन आप पूरा डिस्टेंस के साथ भी जोड़ सकते हैं, और यह हिस्सा मेंशन करके अलग से भी जोड़ सकते हैं। बात मतलब वही निकलना चाहिए, वो दोनों बातें 100% सही है। और तीसरा तरीका, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। कितनी सारी डेफिनेशन हो गई वेलोसिटी की, एक ये हो गई, एक वहां से हो गई, इसको दो तरह से कह सकते हैं, डिस्प्लेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन मिला के भी बोल सकते हो और बाद में भी बोल सकते हो। तो तीसरा ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म। आपको आगे चलो डेफिनेशन समझ में आ गई? आपको तीनों डेफिनेशन पहले भी आती थी क्या? लेकिन अब आ गई, और आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में अक्सर डिफरेंट वे में चीजें पूछते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, किसी अंदाज से भी पूछ रहे हैं, आप आंसर सही दे देंगे। और अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो आप उसी फॉर्म में आंसर देंगे जो आपने रट रखी है, तो रट रखी उसी फॉर्म में आ गई तो आप जवाब दे देंगे। और अगर रटे हुए तरीके से नहीं आई तो वो इंडिकेट वही चीज कर रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे। Therefore, it is compulsory to understand the things in different ways। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो
तो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस क्लास। मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ कि अगर अगली क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। अभी हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बताया, यूनिफॉर्म मोशन बताया है, यूनिफॉर्म स्पीड बताया है, जिसमें डायरेक्शन नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी कंपलसरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। उसके बाद फिर कुछ और चीजें हैं जिनका ताल्लुक जो इत्तेफाक से हमारे यूज में आती है, किताब में उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अक्सर उसके ऊपर सवाल है। जबकि अंदर किताब में डायरेक्ट हो, थ्योरी में बीच में नहीं हो, लेकिन हम उससे मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग के मतलब है, चाहे किताब में वो पॉइंट हो या ना हो, पूरी बात समझ में। मैं आपसे अगर कोई डाउट हो तो कैट में नोट करिए, किसी कोई डाउट है। देखिए इस क्लास का फैकल्टी रिव्यू होगा।